Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Myself Dr. Arjun Kumar Srivastava. Once again I am here with a new video. You know I have given you several videos and you have given me so much appreciation. Thanks for that. So let's here see what is the topic of the day. Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here we shall study very famous poem Keeping Quiet. It has been composed by Pablo Neruda. Pablo Neruda was born on 12 July 1904 and he died on 23rd September 1973. Actually, his real name was Ricardo Elcier Neftal Reis Basso Alto. He knew languages Spanish, English and French. Actually, after he was better known by his pen name Pablo Neruda. He was the citizen of Chile. He also was the Nobel Prize winner. He got his Nobel Prize in 1971. His poem actually is very interesting. First we shall see here introduction of the poem. The poet aims to appeal to the readers to take some time out of their busy life for a little introspection and retrospection. The title Keeping Quiet is symbolic of stopping all the activities and keep the mind quiet by not doing anything but to question and understand the purpose of the world that humans have created around themselves. Theme of the poem. In the poem, the poet advocates to keep quiet and still for a while, to introspect and understand ourselves and our relationships, and to build a peaceful, harmonious world over. Now we shall study here poem stanza by stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Here the number 12 signifies the 12 division of time. It is a measure of time. The poet wants us to keep quiet and not speak. He does not want us to move our arms. The poet pleads us to be silent and introspect. Introspect मतलब समझ रहे हैं ना. कभी कहता है कि थोड़ी देर के लिए काम आदमी इतना कर रहा है आजकल, इतना भागदौड़ की ज़िंदगी, इतनी बिजी लाइफ है कि उसको ये फुर्सत ही नहीं है कि वो एक्चुअली बैठ कर के समझ भी पावे कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, या जो हम कर रहे हैं वो लोगों के लिए वो अच्छा होगा कि बुरा होगा. तो इसी को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्म खुद कर करके अवलोकन करना, खुद का अवलोकन करना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, जो हमारा कार्य हो क्या वो सही है. तो हम काम करते तो जा रहे हैं, कार्य करते तो जा रहे हैं, लेकिन ये भी हमको बैठ के देखना है. इसलिए थोड़ी देर के लिए हमको रुकना होगा और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत होना पड़ेगा. इसलिए इसका टाइटल रखा गया है कीपिंग क्वाइट. नेक्स्ट, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन आ सडन स्ट्रेंजर्स. यहाँ एक्सोटिक वर्ड आया है. एक्सोटिक का अर्थ एक्चुअली होता है अनयूजुअल और अनइंटरेस्टिंग, बिकॉज इट कम्स फ्राम अदर कल्चर और फ्राम अदर कंट्री. कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ होती है जो चलती है कैसे. इट रिफर्स टू द मोमेंट व्हेन देयर इज पीस एंड क्वाइटनेस व्हिच द पोएट कंसीडर्स वुड बी एक्सोटिक. द पोएट इज एड्रेसिंग हिज रीडर्स एंड द एब्सेंस ऑफ hustle and bustle of life would create a feeling of peace and quiet which would make us united. Next stanza. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fishermen symbolize proficient hunters of all kinds. These people have been really exploiting nature and Mother Earth for their own motives and interest. Pablo Neruda wishes to convey that the desire of man for more and more progress and advancement has done more destruction
than development. Next stanza, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Here, those are the politicians, scientists, statesmen, and those responsibilities, authorities, who in their zeal for dominance are involved in इनिशिएटिंग एंड एग्रावेटिंग वार. मतलब ऐसे लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, राजनेता होते हैं, या बड़ी अथॉरिटी वाले अधिकारी लोग होते हैं, वो इतने उत्साहित होते हैं अपने उस एडवांसमेंट में, अपने उस डेवलपमेंट में जिसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन आ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं विनाश उसमें लिखा होता है. इसमें ग्रीन वार जो आया है, इसमें समझिए कि इसमें न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स की बात की जा रही है जो खुद मानव के द्वारा ही निर्मित हैं. और ये करता क्या है, ये किसी राष्ट्र के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ ही काम करता है जो वास्तव में मानवता के लिए अच्छा नहीं है और ना ये तो एनवायरनमेंट के लिए ही अच्छा है. तो इस प्रकार से विक्ट्री विद नो सर्वाइवर यहाँ जो आया है, विक्ट्री दैट मे बी गेन्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर. मतलब आप कोई विजय तो हासिल कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से, केमिकल वेपन से, वॉरफेयर से, लेकिन इसका जो परिणाम होगा, कोई एरिया आपके लिए सुरक्षित नहीं रहेगा. हर जगह केवल विनाश ही विनाश होगा. एनवायरनमेंट सही नहीं रहेगा, शुद्ध नहीं रहेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा. तो आखिरकार क्या होगा कि ये किसी के लिए भी भला नहीं कर सकता, चाहे वो युद्ध का जीता हुआ हो और चाहे वो युद्ध का हारा हुआ हो. इन नेक्स्ट स्टेंजा वी शैल स्टडी व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. आई वांट नो ट्रैक विथ डेथ. पोएट यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि यहाँ टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करना चाहता है कि कोई व्यक्ति काम ना करे, चुप हो जाए, शांत हो जाए, बैठ जाए. इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्क्रिय हो जाए. कहने का मतलब वो जो कार्य कर रहा है उसमें वो कहाँ कर रहा है, इस कार्य को किस ट्रैक पर, किस डायरेक्शन में वो वर्क जा रहा है, वो किसी के वेलफेयर में जा रहा है कि डिस्ट्रक्शन में जा रहा है. जब तक वो इस चीज़ को ठीक से समझ नहीं लेता है तब तक उससे इसको कार्य को करने का कोई मतलब, कोई उद्देश्य उसका फुलफिल्ड नहीं होता. इसीलिए टोटल इनएक्टिविटी का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि ये दर्शाता है कि यहाँ पर लोग बहुत निष्क्रिय हो जाएं, आलसी हो जाए, ऐसा नहीं है. नेक्स्ट स्टेंजा, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Man is single-minded about his own progress and advancement. मतलब व्यक्ति जो है अपने ही लिए सोच रहा है, अपना प्रोग्रेस एडवांसमेंट कैसे हो जाए. कंप्लीटली वो फोकस करता है अपने ही डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को. ये नहीं सोचता है कि इससे विनाश लोगों का होगा, अगले वाले का होगा, और धीरे धीरे फिर वो स्थिति उसके साथ भी बनने वाली है. Sadness of never understanding ourselves. Mankind in its race for materialistic success has sacrificed his emotional needs at some point of time. मतलब materialistic भौतिकवादी उपलब्धि में और उसको एकत्र करने में वह इतना ज़्यादा व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है कि उसके अंदर जो इमोशन होता है, जो फीलिंग्स होती है, जो सिंपैथी होती है, जो हार्मोनी होती है, वो सब डिप्राइव हो जाती हैं, वो सब उससे छिन जाती हैं और वो कुछ भी नहीं सोच सकता मानव कल्याण के बारे में. तो पोएट इस पर बहुत ज़्यादा फोर्सिबली जो है लोगों को एम्फेसाइज करना चाहता है. परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ. शायद पृथ्वी भी हमें कुछ सिखा सकती है. ऐसा प्रतीत होता है कि हर चीज़ें अब बिल्कुल क्या दिखाई पड़ती हैं. डेड का मतलब यहाँ मरी हुई, मतलब वो लाइफलेस दिखाई पड़ती हैं, मतलब जिसमें एकरूपता ना हो, जिसमें जीवंत ना हो, कोई चीज़ जो लिविंग ना दिखता हो. एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. हियर द अर्थ टीचेज अस हाउ न्यू लाइफ स्प्रिंग्स फ्रॉम डेड रिमेन्स एंड हाउ देयर इज लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस. The poet actually wants to achieve peace by counting up to 12. He wants us to introspect in a moment of silence. Keeping quiet doesn't mean being idle. It means that we should avoid all such activities which are hurting the nature and in turn us. Here you can see the poetic devices I will tell you here.
Poetic devices, you know, very important. Here sudden strangeness, clean clothes, hurt hands, wars with, ये we will, we would, ये सब alliteration है जिसको आप अनुप्रांश अलंकार कहते हैं। मेटाफर है इसमें पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स और इन द शेड। रिपीटेशन में आप जान रहे हैं विदाउट ट्रस आया है जगह पर, विदाउट इंजन आया है। इमेजरी यहाँ पर कोल्ड सी है, कोल्ड सी यहाँ शो कर रहा है। नेक्स्ट है एंटीथेसिस, जो काउंट टू 12 है एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। एक तरफ कह रहा है 12 गिनो, फिर कह रहा है कि शांत होकर बैठ जाओ, ये एंटीथेसिस है। और इसमें जो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ये धरती हमें सिखा सकती है। सिखाने का काम कोई मानव कर सकता है, सजीव प्राणी कर सकता है, यहाँ पृथ्वी सिखा सकती है, तो यहाँ इसलिए क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, थीम ऑफ द पोएम। ओके, थैंक्स वेरी मच।